Good evening, everyone. This is Prahar Trivedi. Today, we are going to have a talk on skill set and how to handle professional life with skill set from Deval Joshi. Okay, we are waiting for her right now, and currently, okay. So Deval madam is already here. Yes, Welcome, Deval madam, to the MM's webinar and live talk on FB by Millennium Maker team. I would like to introduce you. Deval Madam is a very learned psychologist, child psychologist. She is a counselor doing career guidance and relationship counseling. She is part of our TIS SVE trainers team. She teaches in our college. She teaches communication and other soft skills. She has a varied experience of more than 5 years in soft skills and MDP's management development programs. And without further ado, I would like to hand over the program to ma'am so that we can benefit from her knowledge also. Over to you, Deval ma'am. Please, welcome. thank you, sir. Thank you so much. Am I audible? Yes, you are audible. Okay, perfect. Perfect. So, good evening, everybody, and thank you so much, Millennium Maker, for inviting me on the stage and to take a session on skill transformation era. So, as the topic has suggested, without wasting much time, let me introduce that today we are living on the same era that is known as the knowledge era. Now, when I say knowledge, I just want you to brief in a word what do you mean by knowledge? Whosoever are live, I just request you all to kindly have a word on this. Just type a single word, single adjective about knowledge. How will you describe knowledge? Can I take 30 seconds for you participants? Can you just write down what the understanding you have developed about knowledge? आप knowledge के बारे में क्या समझते हो? Knowledge को कैसे define करोगे? Okay. I cannot see any comment here. Can you just brief in a word having information about any topic? Okay, Disha. What else? Mm, no conversation, madam. Yes, yes, yes. So I'm moving ahead and I'm just taking a break to open the slides. Can you all see my slides? Not yet. Okay. You will have to share the screen. Yes, I have already done. Now I think Yes, yes. we, It's there now. It's there now. It's there now. okay.
Yes, yes, yes. So when I say knowledge or when I say transformation from knowledge era to skill era, that is all about when I consider myself as a knowledgeable personality. What I understand about knowledge is, first of all, whatsoever information, whatsoever data, whatsoever analytics has been passed on to me, I consider that as a data field, then I analyze on that, then I give my logic to that, then I give my evaluation to that, and at end result, after all this scrutinization, at the end what I get is what my knowledge is. Okay, so now when I say information, what do you mean by information? Aware about something. Okay. 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 So information, see, अगर मैं एक simple example से आप लोगों को समझाऊँ, when I say information and knowledge, these are very different than each other. How they are different than each other? I'll give a simple example. कोरोना इफेक्ट अभी चल रहा है, राइट? वी ऑल आर नोइंग अबाउट द इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट अबाउट कोरोना कि कोरोना में अगर हम सैनिटाइजर बहुत ज्यादा यूज करेंगे देन स्किन के ऊपर रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, स्किन का जो फर्स्ट लेयर है वो डैमेज होने की पॉसिबिलिटीज है. दिस ऑल आर द थिंग्स व्हिच वी आर गेटिंग फ्रॉम सोसाइटी रिस्पॉन्स. So ये सारी जो चीजें हैं, दिस ऑल आर द डेटा एंड एनालिटिक्स. ओके, तो ये क्या हो गया, दिस इज इंफॉर्मेशन. नाउ व्हेन आई से मेरे एरिया में 3 कोरोना केसेस पॉजिटिव है, दिस इज नोन एज इंफॉर्मेशन. Nothing to deal about your logic or statistics, or you really don't have to get into all these things. कि उसको रिसर्च करना है, इन्होंने जो बोला है वो सही है कि नहीं है. We are not bother about all these things. हम जो भी information वहाँ से मिलती है, we are just collecting the data, and that's how the information takes place. Now when I say knowledge, नॉलेज के बारे में अगर मैं आपको कुछ बोलूँ कि ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि सैनिटाइजर बहुत ज़्यादा यूज करने से आपकी स्किन का जो फर्स्ट लेयर है उसको उसका डैमेज होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है. आप जो भी मतलब इंटेक कर रहे हो वो किस हिसाब से होना चाहिए ताकि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ी सी प्योर रहे, बिकॉज कोरोना इज ऑल अबाउट आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए. Now, when I share all this information to you, आप अपने हिसाब से उसके ऊपर एनालिसिस करना शुरू करोगे, राइट? जो भी एनालिसिस करोगे, जो भी आपके डेटा आप कलेक्ट करोगे, उसके ऊपर आपका खुद का स्क्रूटिनाइजेशन दोगे. आप उसके अंदर इंटरेस्ट लेके उस चीज को समझने की कोशिश करोगे, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू स्टार्ट डेवलपिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर ओन वे. ठीक है, मेरे लिए कोरोना का इफेक्ट कुछ अलग है, मेरे लिए कोरोना की इंफॉर्मेशन कुछ अलग हो सकती है, बट फॉर यू पीपल आई थिंक कोरोना की इंफॉर्मेशन विल बी समथिंग डिफरेंट. बिकॉज जो भी मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी है एज अ डेटाबेस, आपने उसके ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है. And this is the finest line between information and knowledge. Information is something जहाँ पे आप अपने आप को as it is रख रहे हो, जो भी data आपको सोसाइटी की तरफ से मिल रहा है, you are just sticking to that data, और आप वही data दूसरों को पास ऑन करते हो without applying your knowledge. Whereas आप जो चीज है, जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है, उसके ऊपर आपका खुद का रिसर्च डेवलप करते हो, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो, एंड यू डेवलप दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट इन योर ओन वे, दैट इज नोन एज नॉलेज. Okay, till now is it clear? What do you mean by knowledge and information? Are we clear with this? Then I just want a thumbs up. Fast. There's no any movement in the chat box. Okay. So now, when I say information era or when I say knowledge era,
era, that is what, when we start following the flow, okay, that is known as era. okay, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि 19th सेंचुरी, मतलब हमारे जो ग्रैंडफादर, मतलब आप लोगों के ग्रैंडफादर एंड हमारी सेकेंड जनरेशन या हमारी फर्स्ट जनरेशन, उनके टाइम पे जो नॉलेज का इरा था, उनके टाइम पे जो इंफॉर्मेशन पास आउट करने का जो पैटर्न था, वो किस हिसाब से था? वो कुछ प्रोसेस को समझते थे, उसको अप्लाई करते थे, and उसके बाद उनकी थियोरी तक जाने की वो कोशिश करते थे। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, उस टाइम पे इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज में वर्कर्स जो हुआ करते हैं, वो उनके पास जो नॉलेज हुआ करता था, अगर वो टीचर है, अगर अगर वो टेक्नीशियन है, बट फिर भी टीचर का काम क्या होता है? जनरली वो नट्स एंड बोल्ट्स के साथ डीलिंग करते हैं, वो प्लांट्स में कहीं पे कनेक्शन लूज नहीं हुआ है, मतलब पाइप का जो है वो सारी चीजें देखते हैं। टेक्नीशियन जो होते हैं वो वायरिंग का काम भी देखते हैं, वो फ्लोशिप का काम भी देखते हैं, ये सारी चीजें टेक्नीशियन के काम में आती है। बट जनरली होता क्या था कि वो लोग एक दूसरे के काम को, एक दूसरे की जो एक्सपर्टीज है उनको शेयर किया करते थे। एंड दैट्स हाउ, अगर आप फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन आपकी देखोगे तो उनको हर एक चीज का नॉलेज रहेगा कि कैसे स्विच को चेंज करते हैं, कैसे वायरिंग को चेंज करते हैं, कैसे मतलब जो रेड वायर होता है वो किसके लिए होता है, ग्रीन वायर किसके लिए होता है, ब्लैक वायर किसके लिए होता है, ये सारी चीजें दो या नॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फील्ड, बट उनको पता रहती थी। सेम में अगर उनको प्लम्बिंग का काम थोड़ा बहुत आता है तो वो खुद ही घर पे नल फिट किया करते थे। अभी भी आपने देखे होंगे ऐसे बहुत सारे लोग जो घर के हर एक छोटे मोटे काम आराम से कर लेते हैं। तो ये जो एरा था वो कौन सा एरा था? वो टूल्स, प्रोसेस, प्रोडक्शन, ये सारी चीजों को मिक्स करके उन्होंने जो एक नॉलेज एक्वायर किया था, हर एक जगह से जहां से भी उनको कोई भी चीज मिलती थी सीखने के लिए, they were very adaptive towards that, और इस हिसाब से उन्होंने अपना नॉलेज एक्वायर किया था। तो अभी शायद उनके हाथ पैर नहीं चल रहे होंगे, बट इफ यू आस्क देम कि ये जो वायर है, इसमें हम अगर अर्थिंग का वायर ढूंढने जाए तो कहाँ से मिलेगा, दे वुड डेफिनेटली लेट यू नो कि ये जो अर्थिंग का वायर है ना, ये इसको ये वायर बोलते हैं। Why? It's just because that was the era where knowledge was so adaptive, और उनके पास इतना अडेप्टेशन स्किल था कि वो हर एक जगह से हर एक चीज एक्वायर करने की कोशिश करते थे। नाउ द सेकेंड era comes into a picture कि जहाँ पे विनर्स की नॉलेज, दैट इज 20th सेंचुरी की बात अगर हम करें, जो शायद हमारी फर्स्ट जनरेशन, मतलब हमारे पापा मम्मा का जमाना जो था, उसकी बात मैं कर रही हूँ। उस टाइम पे अगर हम नॉलेज की डेफिनेशन कुछ सर्च करने जाए तो उस टाइम पे अगर आपको याद है, लोग एक डेजिग्नेशन से सामने वालों को नॉलेजेबल या सामने वालों को नॉलेजेबल या इंटेलिजेंट या नॉन इंटेलिजेंट समझने की कोशिश करते थे। हाउ? जैसे मैं आपको अगर बताऊं कि मेरे फादर जो है वो रिटायर्ड जीएम रह चुके हैं, तो यू मतलब हम लोगों को ऐसा लगेगा कि इसमें क्या है, अभी तो शायद वेरी हैंडी जॉब। बट उस टाइम के लोगों को अगर मैं ये बात करूं कि माय फादर वाज रिटायर्ड जीएम फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्री, दे वुड फील वाओ अबाउट दिस। हाँ, फिर तो आपके फादर बहुत नॉलेजेबल रहे होंगे, उनके पास बहुत अच्छी स्किल्स रही होगी। भाई, इट्स जस्ट बिकॉज वो जो इरा था वो ऐसा इरा था कि जहाँ पे अगर आपके पास डेजिग्नेशन है कोई, दैट मीन्स यू आर कंसिडर एज अ सुपर इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, या फिर आप ऐसे कंसिडर किया करोगे अपने आप को कि मतलब आई एम दी मोस्ट नॉलेजेबल पर्सनालिटी, और मेरे अंदर जितने भी काम करेंगे आई हैव टू टीच देम हाउ टू अप्लाई देयर नॉलेज। तो मेरा जो पावर है दैट इज टू पास ऑन माय नॉलेज, और मेरे नॉलेज के हिसाब से बाकी सारे लोग काम करेंगे। इट वॉज दैट एरा। ओके, नाउ दिस सेकेंड टाइम कम्स इन, जब हमारा एरा चल रहा था, व्हाट वी हैव फेस्ड। अगर आपके पास मतलब जो यूपीएससी जीपीएससी एस्पिरेंट, डॉक्टरेट, लॉयर या फिर इंजीनियर्स, आईटी इंजीनियर्स, ये सारी जो चीजें अगर आपके पास है, दैट मीन्स यू आर कंसिडर्ड एज अ क्वालिफाइड पर्सनालिटी। एजुकेटर्स का उस टाइम पे बहुत अच्छा स्कोप हुआ करता था हमारे जमाने में कि इफ यू आर इनटू एजुकेशन फील्ड, यू आर कंसिडर्ड एज अ नॉलेजेबल पर्सनालिटी।
ओके, और आपको लोग रिस्पेक्ट की तरह से देखते थे एंड दिस एंड दैट, बिकॉज वो जो हमारा जो इरा था दैट वाज द इरा वेयर नॉलेज टू नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ करता था। अगर हम कंसिडर करें अपने आप को मेंटर की तरह, अगर आप कंसिडर करें अपने आप को एजुकेशनिस्ट की तरह, तो यू ऑलवेज कंसिडर कि हाँ चलो एजुकेशनिस्ट जो है वो हमेशा एट पार विद द नॉलेज, उनके अंदर कोई एरर हो ही नहीं सकती। इफ दे आर प्रोवाइडिंग और सिक्योरिंग सम पोजीशन कि जहाँ पे वो लेक्चरर है, टीचर है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज सुपर इंटेलिजेंट। ओके, तो ये एक नॉलेज की डेफिनेशन हुआ करती थी। अगर कोई बंदा जीपीएससी यूपीएससी एक्सपीरियंस है, अगर वो इसकी सिविल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, दैट मीन्स उसके अंदर फार अपार्ट नॉलेज है। ठीक है, तो ये सारे जनरेशन टू जनरेशन नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन और नॉलेज की डेफिनेशन की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से अभी के टाइम पे echo in my voice. Okay, so shall I try it once more? Now is it okay? Is it okay? Am I audible now? Sir, am I audible? Hello? Am I audible, sir? Hello? Hello? हाँ सर। हाँ, मोबाइल स्वॉप ऑफ करो ना। ओके, डन। I'm sorry, I took a break because of some echo problem was there. So I think now there must be audible and there is no any disturbance in between. Now is it okay, sir? Okay. So now when we say about today's generation, like my second generation, or else I can say my youngsters, whosoever are seeing me, whosoever are student of mine, you all are the second generation of mine, right? So this is the generation which we consider as the information generation or else knowledge age. Why we are saying this is just because nowadays data is so handy with everybody. Now, when I say if you are from science background and if I ask you how to manage the account, tally कैसे manage करना है, and if I give you one day, full one day if I give you, and if I ask कि आपको ये 24 hours मैं दे रही हूँ, now you have to provide me certain information about tally. I'm sure out of 100, 80% will be coming up to me and say, yes, madam, we have done this, or itni information हमको मिली है about tele. Now, from where you have got this information? That is from your own handy handset. Okay, आपके पास जो ये device है, जो हमेशा आपके हाथ में रहती है, from that you can able to access each and everything. जो भी आपके पास accessible है, वो सारी चीजें क्यों accessible है? It's just because you have this data.
ठीक है, अगर मैं आपके पास से ये डेटा छीन लूं, देन यू विल बी वेयर, यू विल बी नो वेयर, राइट? बिकॉज आपके पास आपका बेसिक टूल जो है टू गैदर द इंफॉर्मेशन, टू मेक योरसेल्फ knowledgeable in front of the society is just a device, okay? And that's why what we used to say is, nowadays we all are sitting, including me, we all are sitting on an information volcano. कब ब्लास्ट होगा we never know. अगर हम किसी को कुछ पूछते हैं, we all get to know about this ना, कि हम किसी को कुछ पूछते हैं and they have plenty of answer, ठीक है? नहीं, ये तो यहाँ से ये मिला था, डेकमा ने कल ये किया था, ये इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से मिली है, एंड एज इफ हम ऐसे रिसेट करते हैं ये सारी चीजें जैसे हम जैकमा के पड़ोसी रह चुके हो, या फिर जैकमा हमारे एग्जैक्ट बाजू में रहता हो, वॉरेन बफेट हमारे एग्जैक्ट 2 घर छोड़ के रह रहा हो, और हमको उनकी सारी हिलचाल पता चल रही है। इस हिसाब से हमको हर एक चीज की इंफॉर्मेशन है। हाउ कम? इट्स जस्ट बिकॉज ये जो चीज है, दिस इज ऑल अबाउट वी आर इनटू दी कंपटीशन। उसके पास ये इंफॉर्मेशन है, मेरे पास नहीं है, दैट मीन्स आई नीड टू बी मोर एक्सेसिबल टू माय डिवाइस, और इस हिसाब से मुझे ये सारे इंफॉर्मेशन लोगों से ज्यादा पता होनी चाहिए, है ना? कोरोना के नंबर्स भी, अरे यार ये कोरोना का नंबर सुबह मैंने देखा था, इट वाज 349, और अभी 2 घंटे के बाद अगर कोई आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, नहीं नहीं यार 349 वो तो कब की बात कर रहा है, अभी देख कितना रिसेंट हो गया है, इट्स लाइक 500 क्रॉस हो गया है, एंड यू फील वेरी सैड अबाउट इट। आपका ईगो हर्ट हो जाता है कि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो उससे कम क्यों है। And just because of all these things, we always think about this कि हमको continuous Chrome पे रहना है, browsing में रहना है, हमको Google continuous on रखना है, and everything, right? ये क्यों हो रहा है? It's just because this era is slowly and gradually moving towards that information era. What we consider ourselves, आज क्योंकि हर एक यूथ को पूछो, they consider themselves as knowledgeable. Why? Because उनको knowledge और information का मतलब ही नहीं पता। When I say कि informative हो आप, yes, you are informative, but वो जो information है उसको सही तरह से use कैसे करना है? If you are not consider yourself like this, आपको पता है कि पट्टी जो होती है, वायरिंग की बेल्ट जो होती है, उसके अंदर 4 वायर्स जाते हैं। आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो, फिर भी आपको पता है कि 4 वायर्स जाते हैं, बट आपको ये नहीं पता है कि वो 4 वायर्स में से किसको मैं टच करूंगा तो मुझे इमीडिएट करंट लगेगा और मैं वहीं पे गिर जाऊंगा। देन योर इंफॉर्मेशन इज पार्शियल इंफॉर्मेशन। यू रियली डोंट हैव टू डू विद दिस इंफॉर्मेशन, राइट? तो नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इन दोनों का क्लैरिफिकेशन रखना बहुत जरूरी है इफ यू रियली वांटिंग टू प्रोसीड अहेड विथ योर लाइफ। और अभी का जो इरा है, दैट इज ओनली एंड ओनली टुवर्ड्स इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के आगे उनके पास और कोई भी चीज नहीं है। नाउ व्हेन आई से इंफॉर्मेशन वाली पार्ट, तो अगर हम इंफॉर्मेटिव है, ये इंफॉर्मेटिव इरा हमारा कब तक हमको सपोर्ट करेगा? बिकॉज अभी कोरोना आ गया है, नाउ एवरीबडी डू हैव देयर इंफॉर्मेशन, बिकॉज जो लॉकडाउन आपके पास था वो हर एक के पास था, जो आपने एक्सेस किया था अब तक वो सारी चीजें विद इन 2 मंथ हर एक ने एक्सेस की है। नाउ यू बोथ आर ऑन द सेम लेवल, आपके पास जो इंफॉर्मेशन जा रही है वही दूसरे लोगों के पास जा रही है। नाउ यू आर नोवेयर कंपेयरिंग योरसेल्फ कि मैं यहाँ हूँ और ये लोग यहाँ हैं। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अभी जो इरा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशनल इरा। ये जो कोविड-19 की सिचुएशन थी, दिस इज जस्ट एक ब्रिज था ये दोनों चीजों के बीच में। बाकी अगर आप देखने जाओ तो टेस्ला कार, आप सबको पता है वो बहुत टाइम पहले से आ गई है। टेस्ला कार दैट इज व्हाट, एक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, ड्राइवरलेस गाड़ी है, जो इंडिया में अगर लॉन्च होगी तो इमीडिएटली सारे जो ड्राइवर्स है, टैक्सीज है, वो सारी जॉब चौपट होने वाली है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? दिस इज known as transformation. Okay, वो कब का शुरू हो चुका है? As we know, हम इंडियन हैं, हम गुजरात में बैठे हुए, इसलिए आपको नहीं पता है कि ये वेबिनार जैसी भी बहुत सारी चीजें हो सकती है।
हमने ये कोरोना के लॉकडाउन के बाद ये सारी चीजें सीखी कि हाँ चलो जूम भी एक्सेस कर सकते हैं, इसको भी एक्सेस कर सकते हैं, गूगल मीट, गूगल क्लासरूम, ये सारी चीजें हमने अभी अभी एक्सेस करना शुरू किया है। बट यू वुड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें कहाँ से शुरू हुई है। साउथ में बैंगलोर में मेरे एक रिलेटिव रहते हैं, दैट रिलेटिव मेरे जो जीजाजी हैं, वो ऑलमोस्ट फ्रॉम सिंस प्रीवियस 8 years 8 years से वो घर पे ही काम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर ही उन्होंने अडॉप्ट किया है, बिकॉज दे हैव अ स्मॉल डॉग, और डॉग की केयर करने के लिए उनके पास कोई मेड अवेलेबल नहीं है वहां पे डोमेस्टिक सप्लाई हमारे जैसे इजीली अवेलेबल नहीं होती। सो व्हाट दे हैव डिसाइडेड कि वो हस्बैंड वाइफ है, वाइफ का जॉब ऐसा है कि उनको रेगुलरली विजिट पे जाना पड़ता है केस स्टडीज के लिए। सो नाउ हस्बैंड हैज चूजन वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन फ्रॉम द कंपनी। तो ये 8 years से ये सारी चीजें वहां पे चल रही है, हमारे पास ये सारी चीजें अभी अभी एक्सप्लोर हुई है। वी फील वाओ कि हाँ हम लोग भी अभी ये सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट वी वर इनटू द इंफॉर्मेशन एरा कि हाँ ये ऐसा कुछ कंसेप्ट होता है, जब आएगा तब देख लेंगे। एंड वी वर नॉट एबल टू प्रिपेयर आवरसेल्फ, और कोरोना ने एकदम धड़ाम से अपने सिर पे डाल दिया एंड वी ऑल फेल्ट लाइक ओ माय गॉड व्हाट हैज हैपेंड विद दिस। अभी हम इसको कैसे हैंडल कर पाएंगे, है ना। सो वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर जो है वो अडेप्टेशन में नहीं था, इमीडिएट अडेप्टेशन में आया। एंड वी ऑल फील वो जो बिना पानी की जो मछली होती है उसकी छटपटाहट देखी है ना, सेम भी हम लोगों की थी, बिकॉज हमने प्रिपेयर नहीं किया था अपने लिए। सो नाउ व्हेन आई से ट्रांसफॉर्मेशनल इरा के अंदर हम बैठे हैं, आस्क योरसेल्फ 2 questions. One question is like, what would a world with too much of information looks like? अब देखो हर एक के पास वही इंफॉर्मेशन है जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, हर एक के पास वही डेटा है जो आपके पास है। जो चीज मैं अभी आपसे बोल रही हूँ वो सारी चीजें आपको एक शॉट में यूट्यूब के ऊपर डालोगे और वो सारी चीजें मिल जाएगी। हाउ वुड यू फील अबाउट? आप मुझे यहाँ पे सुनने के लिए बैठे होंगे? बिल्कुल ही नहीं, राइट। एंड व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स वुड गेट क्रिएटेड? अगर आप सोचो जो मैं बोल रही हूँ वो सारी चीजें आपको पता है, आपको पता है कि इससे भी बहुत ज्यादा हमारे पास नॉलेज है, कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है एंड कैसा लगेगा वो वर्ल्ड? वो वर्ल्ड कुछ ऐसा लगेगा, एनालिसिस पैरालिसिस हो जाएगा हमको। व्हाई आई एम सेइंग, व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड इज एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब हम कोई भी चीज को स्क्रूटिनाइज करते हैं, जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया, इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है, इंफॉर्मेशन को स्क्रूटिनाइज करना, उसके बारे में रिसर्च करना, अपने दिमाग से उसके ऊपर लॉजिक सप्लाई करना, अपनी रिसर्च मेथड उसके ऊपर अप्लाई करना, एंड देन यू कंसिडर दैट इंफॉर्मेशन कि हाँ अभी मेरे पास ये डेटा है, डेटा के ऊपर मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, एंड नाउ आई एम कंसिडर माई सेल्फ एज अ नॉलेजेबल पर्सनैलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। वो अभी आपके पास नहीं रहेगा, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज हैंडी, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन जस्ट वन स्क्रॉल, है ना। इंटेलेक्चुअल सी लेजीनेस आ जाएगी, बिकॉज नाउ वी नो। अगर मैं आपको पूछूंगी, एक सिंपल एक्सरसाइज करते हैं, आई जस्ट वांट यू टू बी ऑनेस्ट विद दिस। आई नो आई कैन नॉट सी ऑल ऑफ यू, बट इफ यू कैन बी ऑनेस्ट विथ यू, अब आंख बंद करो immediately the moment I say close your eyes, that means you need to close your eyes. Okay, ready? 1, 2 and 3. Close your eyes. Now while closing your eyes, don't cheat, and while closing your eyes just say, ये जो स्लाइड थी उसके ऊपर, अभी जो स्लाइड चल रही थी उसके ऊपर कौन कौन से कलर्स आपको दिखे थे? Don't open your eyes, be humble, be honest, and just write down कौन कौन से कलर्स आपको दिखे थे। Can you just write it down? Blue color, white color, black color, what else? See, this is known as intellectually laziness.
As we all know, there is nothing to do with this. हमको सिर्फ सुनना है, मतलब हमने अपनी observational skill जो थी उसको shut कर दिया. And that's the only reason why हमको सोचना पड़ा कि यार ये क्वेश्चन कहीं से आएगा, ये तो हमारे दिमाग में ही नहीं था. What we understood is black and white. Okay, हाँ black and white font है, हमने लिख लिया. But about ग्रे कलर हमने देखा था, वो हमें याद नहीं रहा. हमने नेवी ब्लू कलर देखा था, हमने स्काई ब्लू कलर देखा था, हमने रेड कलर देखा था विद दिस पर्टिकुलर लेडी टॉप. हमने ऑलिव ग्रीन कलर देखा था. ये स्लाइड का जो बैकग्राउंड है दैट इज नोन एज ऑलिव ग्रीन. ओके, हमने सेम वे टिंट ऑफ द ऑलिव ग्रीन देखा था. ये सारे शेड्स हमारे दिमाग से हट गए. व्हाई? बिकॉज वी ऑल नो कि यहाँ पे हमको और कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, हमें सिर्फ सुनना है. दिस इज नोन एज इंटेलेक्चुअली लेजीनेस. आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिंपल एग्जांपल जो अभी आपके सामने ऑनलाइन है. फॉरगेट अबाउट दिस. आप अपने आप से कभी सोचने की कोशिश करना कि आपको जो सारे नंबर, पहले के जमाने में लोग डायरी रखा करते थे. डायरी भी जब नहीं थी तो लोग कुछ कुछ ट्रिक्स याद करके अपने घर के नंबर याद रखते थे. फोन नंबर, लैंडलाइन फोन नंबर का जब जमाना आया तो किसी के पास कुछ भी नहीं था. डायरी हर रोज लोग ले लेके नहीं घूमते थे. बट स्टिल दे नो कि हमारे पास जितने भी हमारे घर के नंबर्स हैं वो हमें हैंडी मुंह पे होने चाहिए. तो वो हमारी यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअली एक कॉग्निटिव माइंडसेट होता है, एक हमारा क्रिएटिव माइंडसेट होता है. कॉग्निटिव माइंडसेट क्या करता है, वो हमारी ये सारी इंफॉर्मेशन, डेटा जो है, न्यूमेरिकल्स जो है, उसको याद करने के लिए हमें तैयार करते हैं. एंड क्रिएटिव माइंडसेट जो है वो हमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स में भी सोल्यूशन निकालने के लिए तैयार करते हैं. वी आर ब्लैंक विद दिस. अभी अगर आप बोलोगे कि हाँ हमने 3 दिन पहले एक नया नंबर लिया है, यू नीड टू स्टोर योर नंबर, राइट और रॉन्ग, है ना. आपको अपना नंबर स्टोर करना पड़ता है बिकॉज यू नो कि ये सारी चीजें मैं याद नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती. व्हाई? इट्स जस्ट एंड जस्ट बिकॉज वी आर लोडेड विद फुल ऑफ इंफॉर्मेशन. रादर वी आर लोडेड विद हैंडी इंफॉर्मेशन. यार हैंडी इंफॉर्मेशन है, इसलिए हमको ये सारी चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है. वी आर ऑलवेज कीपिंग आवरसेल्फ इन अ ऑप्शन थिंग कि ये सारी चीजें याद रखने की जरूरत क्या है. व्हेन वी हैव दिस मोबाइल, व्हेन वी हैव दिस डिवाइस इन आवर हैंड, इसमें स्टोर कर दो नंबर. कोई पूछे तो इमीडिएटली यहाँ से निकाल के दे दो. व्हाई टू स्ट्रेस योर ब्रेन, है ना. ये सारे जो वर्ड्स है वो बहुत इजीली अवेलेबल हो गए हैं हमारे लिए. इतना लोड क्यों लेते हो? दैट्स व्हाट द कन्वर्सेशन व्हिच आई यूज्ड टू हर्ड फ्रॉम माय कॉलेज स्टूडेंट्स. बहुत सारे बार कैंपस में से निकलते हैं, पता चलता है इतनी सारी बातें होती है. फ्रॉम दिस थिंग, अरे यार लोड क्यों लेता है यार, एवरीथिंग इज देयर, है ना. So this is known as intellectually laziness. Third thing, and the most powerful thing, why we all are feeling very much dissatisfied, it's just because जो हमारे पास है उससे 1%, 2% किसी के पास ज्यादा आएगा ही आएगा because of competition. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये सारे इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, now if I give 2 days to all of you, I know कि आप इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके 1% या 2% की ज्यादा करोगे, उससे आगे नहीं जाओगे. बिकॉज यू आर नॉट हियर टू प्रूव योरसेल्फ इंटेलेक्चुअल, रादर यू आर हियर टू प्रूव योरसेल्फ कि हमारे पास भी ऐसी इंफॉर्मेशन है. वी कैन ऑल्सो प्रूव आवरसेल्फ लिटिल सुपीरियर देन यू, फार सुपीरियर. देयर इज नो एनी डिक्शनरी अबाउट इट. ये वर्ड हमको अपनी डिक्शनरी में नहीं डालना है. हमें सिर्फ इतना ही डालना है, इसकी लेवल यहाँ पे है, हमको सिर्फ एक स्टेप ऊपर जाना है. दैट्स, है ना. सो ये जो है ये कंटिन्यूअस आपके अंदर डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं. अर्लियर, पहले के जमाने में क्या था, हर एक के पास अपनी खुद की स्किल थी, अपना खुद का नॉलेज था, एंड दे ऑल वर सुपीरियर इन देयर ओन वे. किसी को किसी का छीनने में, किसी को किसी से सुपीरियर फील करवाने में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था. बिकॉज दे ऑल नो कि हर एक के पास हर एक चीज अवेलेबल है और उनकी स्किल का हमें फायदा उठाना है. दैट्स, ठीक है. तो ये सारी चीजें, the third thing is the root for each and every problem which you all are facing, including me. We all are facing nowadays in this era. Dissatisfaction ले लो, stress level ले लो, panic lifestyle ले लो,
वर्क लाइफ बैलेंस ले लो, टाइम मैनेजमेंट ले लो, फोबिया कुछ ले लो, या फिर आपको रात को नींद नहीं आती है, एनी सिम्टम्स इफ यू टेक, दिस इज द रूट फॉर दिस। हमारे पास डिससेटिस्फैक्शन है बिकॉज हमें ये पता नहीं है कि वो बंदा क्या एक्सेस करके इतनी सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो वी आर इनटू दैट कि उनके पास कौन सा ऐसा ब्राउजर है, कौन सी ऐसी साइट वो फॉलो कर रहे हैं। वी ऑल आर नोइंग कि वो साइट फॉलो करके ही ये सारी चीजें निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमको सिर्फ ये जानना है कि उनके पास वो जो जादुई साइट है, जादुई चिराग है, वो हमारे हाथ में आ जाए, देन वी ऑल्सो कैन रॉक द फ्लोर लाइक दिस पर्सनालिटी, ठीक है। तो ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं हमको स्टक कर रही है, कहीं ना कहीं हमको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। And just because of all these things, now we are completely changing ourselves. अभी का जो generation आ रहा है, now that generation is no more into information things. Now this generation is no more into all the things. Generation is focusing on what? Generation is focusing on innovations, creativity, continuous innovation, continuous evaluation, and out of this, now if you can create your own blue ocean, we people really wanting to have you. ठीक है, अभी का जो इरा है दैट इज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशनल इरा, जहाँ पे आपके पास डिग्रीज नहीं होगी। अगर आपने बीकॉम किया है, अगर आपने बीए किया है, इट्स ओके टू हैव दिस मच ऑफ नॉलेज, बट अगर आपके पास ये जो नॉलेज है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके स्किल एनहांसमेंट करना आ रहा है आपका, देन यू विल बी थ्रू, अदरवाइज यू हैव नो लाइफ, नो एक्सेसिबिलिटी। सर्टिफिकेट वी ऑल नो, अभी उदयमी है, अभी ऑक्सफोर्ड में बहुत सारे ऐसे फ्री कोर्सेज अवेलेबल करती है। वी ऑल नो ये सारी चीजें लॉकडाउन के पास लोगों के पास बंडल्स पड़े हुए, व्हाट टू डू विद दिस, बिकॉज उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ, मुझे कोई आप में से दिख नहीं रहा है, नाइदर मैं आपके पीछे पीछे भाग रही हूँ कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, मैं जो सिखा रही हूँ वो आप क्यों नहीं सीख रहे हो। इट्स ऑल अबाउट यू, आप कितना लेना चाह रहे हो, आप कितना छोड़ना चाह रहे हो, इट्स योर कॉल, इट्स कंप्लीटली योर कॉल। आई एम नोवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, है ना। यही चीजें वो लोग भी कर रहे हैं बिकॉज दे आर प्रोफेशनल। Udemy is professional, Oxford is professional. उनको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, you just pay us $49 and we will give you Oxford का सर्टिफिकेट, that's it. आपने उसमें से कितना सीखा, कितने लेक्चर्स अटेंड किए, कितनी एक्सरसाइजेस कंप्लीट की, we are not bothered about this. Done. So ये सारे जो सर्टिफिकेट्स है, it is of no use, believe me guys, because we all know ये सर्टिफिकेट्स कैसे जनरेट है। Now what to do with this? Here we are transforming ourselves from this information era, from this volcano, information volcano, to the actual skill era. Now what do I mean by skill era? Skill era is nothing but the systematic application of your knowledge. What do I mean by systematic application? Now when I say 2 plus 2 is 4, you all will ask me like 2 is what and 2 is what. Now if I say 2 is numerical, another 2 is also numerical, then it comes 4, you will understand. But if I say 2 dogs and 2 cats is equal to 4, will you able to manage this information? You will always say no, it's not at all possible as a Darwin's theory, because here this theory comes into the cycle way, जहाँ पे फूड चेन बनती है। फूड चेन में दिस पर्सन इज अ प्रे, दिस इज अ उसका खुराक बनेगा, राइट। जो डॉग है वो कैट को खाएगा, तो 2 कैट यहाँ पे होगी, 2 डॉग यहाँ पे हो गए, दैट मीन्स भले ही वो प्लस हो रहे हैं बट इसका आंसर 0 आएगा। दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर नॉलेज टू स्किल era. Got it? Yes or no? Am I clear till now? Perfect.
So now when I say skill era, now you all must be knowing skills बहुत सारी होती है, जैसे हमारे यहाँ पे बीवॉक में भी बहुत सारी skills सिखाई जाती है, starting from communication skills, interview skills, personality development, this all are the skills, right? ये सारी चीजें skills में ही consider होती है, but generally skills are of three types. जब भी हम स्किल्स की बात करते हैं वी कैन नॉट कंसिडर कि हमारे पास लाइफ स्किल है इसलिए मेरे पास ये स्किल नहीं है तो चलेगा. इट्स नॉट एट ऑल लाइक दिस. स्किल्स आर टेक्निकल स्किल्स, फंक्शनल स्किल्स एंड बिहेवियरल स्किल्स. नाउ व्हेन आई से टेक्निकल स्किल मीन्स जो भी आपका बेस नॉलेज है. बेस नॉलेज आई मीन टू से अगर मैंने बीए किया है, अगर मैंने बीएससी किया है, अगर मैंने बीकॉम किया है, देन आई वुड डेफिनेटली हैव सम नॉलेज. ठीक है, जैसे आज ही हम बात कर रहे थे कि दिकीत सर ही हिमसेल्फ इज अ ट्रेनर, बट उनके पास आईटी फील्ड का बहुत अच्छा नॉलेज है बिकॉज ही हैज वर्क विद द आईटी बैकग्राउंड अर्लियर. ठीक है, तो ये जो है ये इनकी टेक्निकल स्किल है. वी कैन नॉट डिनाई ऑन दिस कि टेक्निकल स्किल नहीं होनी चाहिए. जैसे अगर आप यूपीएससी जीपीएससी एस्पिरेंट्स की बात करो, सिविल सर्विसेज की बात करो, उनके पास टेक्निकल स्किल्स क्या होनी चाहिए? उनके पास हर एक चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. नाउ टू गैदर दिस इंफॉर्मेशन, दैट इज व्हाट इज नोन एज देयर टेक्निकल स्किल. बिकॉज उनका काम यही है कि हर एक जगह से इंफॉर्मेशन गैदर करो, रट्टा मारो और उसके अंदर लिख लो. सो दिस इज नोन एज टेक्निकल स्किल फॉर दे पीपल. ठीक है, यहाँ पे दूसरी जो बात हो रही है, अगर मैं टेक्निकल स्किल की बात करूं, जैसे पुलिस, अगर पुलिस बनना है तो उनके पास टेक्निकल स्किल क्या होनी चाहिए? उन्होंने वो जो 3 मंथ्स या 4 मंथ्स का जो उनका तालीम का जो केंद्र होता है जहाँ पे उनको बहुत अच्छे से डेवलप किया जाता है ये सारी चीजों के लिए, वो अगर उन्होंने किया हुआ है देन दे आर थ्रू विद द टेक्निकल स्किल. कहाँ से डंडा मारना है, कौन से बोर्ड्स के ऊपर आप डंडा मारोगे तो बहुत अच्छे से लगेगा, उनको डराना है तो क्या थियरी यूज करनी है, उनकी डिग्रीज होती है, राइट? यू ऑल मस्ट बी नोइंग फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री. ये डिग्रीज जो है वो जो सारी चीजें हैं उसके ऊपर तालीम दी जाती है उनको, उसका भी बहुत अच्छे से ट्रेनिंग होता है. तो वो उन्होंने अच्छे से एक्वायर किया है, देन दैट पर्सन इज टेक्निकली स्किल्ड पर्सन फॉर दैट पुलिस जॉब. ओके, तो आपके एरिया, आप जो भी एरिया आपका चूज कर रहे हो फॉर योर करियर बिल्डिंग, फॉर योर प्रोफेशनल पाथ, आपके पास उसकी टेक्निकल स्किल है कि नहीं. नाउ आई एम नॉट हियर गिविंग यू एनी ब्लर पिक्चर कि आपके पास नॉलेज होना ही नहीं चाहिए, आपके पास डिग्री होनी ही नहीं चाहिए. आई एम नॉट गिविंग यू द रॉन्ग पाथवे फॉर दिस. See, each and everything has place in their own way. But here what we are talking about is अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारा हुआ नॉलेज होगा, यू विल बी वेइंग आउट. यही मेरा कहने का मतलब है. ठीक है, अगर आप बीए किया है, आपने अगर साइकोलॉजी उसके बाद परस्यू किया है, नाउ इफ यू आर थिंकिंग कि मेरे पास क्लिनिकल साइकोलॉजी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, you may definitely go with this because this all are the things जो आपके पास होनी चाहिए. ठीक है, ये डिग्री जो होती है it holds a value. जैसे आप इंजीनियर का हर एक काम जानते हो, बट आपके पास इंजीनियर की डिग्री है नहीं है, none of the corporate will serve you. ये बेसिक डिग्री है, एंट्रेंस डिग्री है, ये आपके पास होनी चाहिए. वी आर नॉट डिनाइंग विद दिस, बट उसके बाद जो आपको करना है, इफ यू आर टेक्नीशियन और इफ यू आर इंजीनियर स्टूडेंट, तो आपको उसके बाद जो करना है दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट स्किल एरा. आपने अंदर रिक्रूटमेंट लेवल पास कर दिया, रिक्रूटमेंट के टाइम पे भी अभी का जो अगर इंटरव्यू साइकिल आप देखोगे, आपको पता होगा कि इंटरव्यू अभी फॉर्मल वे में इंटरव्यूज नहीं हो रहे हैं जहाँ पे 50 लोग बैठे हो, आप वहाँ पे वेट कर रहे हो. ओल्ड मूवी सिस्टम में जो आपने देखा होगा, हर एक लोग मतलब पसीना पसीना हो रहे हैं, सामने केबिन है और केबिन भी मतलब क्लोज ग्लास डोर केबिन है, केबिन के अंदर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, और वहां से कोई अंदर से आवाज आएगी कि यू आर रिजेक्टेड करके उनकी फाइल हवा में उड़ा रहे हैं. nowhere in the scene now. ठीक है, अभी के जो इंटरव्यूज हो रहे हैं, अभी के जो इंटरव्यूज जो प्लान कर रहे हैं,
Leaders are very smart. Now they really don't want anyone who has just a bookish knowledge, because they all know, include all industry personalities जो अभी hierarchy deserve कर रहे हैं, उन सबको पता है कि अभी knowledge जो है, this is just a one scroll away with us. ठीक है, हमने सिर्फ एक स्क्रॉल अप एंड डाउन किया एंड वी विल बी थ्रू विद द नॉलेज. किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं है. नाउ हाउ यू कैन टेक योर नॉलेज अहेड एंड हाउ यू कैन कन्वर्ट योर नॉलेज इनटू अ सिस्टमैटिक एप्लीकेशन, पीपल आर मोर टुवर्ड्स दिस. तो इसीलिए वो लोग प्लान कैसे कर रहे हैं, वो लोग हमेशा एक ग्रुप इंटरव्यू प्लान करते हैं, या फिर वो लोग किसको बुलाते हैं, दे ऑलवेज कॉल दी रिक्रूटमेंट पैनलिस्ट को बुलाते हैं, जिसको एक स्पेशल फीचर्स बोलते हैं, जहाँ पे जनरली काउंसलर्स या फिर साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करने के लिए बैठे होते हैं, जो उनकी वर्बल कम्युनिकेशन को ऑब्जर्व करने के लिए बैठे होते हैं. ट्रेनर्स फ्रॉम वेरी ग्रेट स्किल, वो लोग वहां पे रिक्रूटमेंट के लिए बैठे होते हैं. बाय साइकोमेट्रिक टेस्ट उनको जज किया जाता है कि आप कौन कौन से प्रॉब्लम्स को किस हिसाब से हैंडल करोगे, उसका एक टेस्ट होता है, उसके अंदर वो लोग जाते हैं. जनरली ये सारी फॉर्मेट्स अभी रिक्रूटमेंट सिस्टम के अंदर आने लगी है. दैट मीन्स पीपल रियली वांटिंग टू हैव अ स्किल्ड पर्सनालिटी इन देयर सिस्टम रादर हैविंग अ बुकिश नॉलेज पर्सनालिटी. ठीक है. So now when I say technical skill, तो अभी की इरा में अगर हम देखने जाए तो technical skill का weightage थोड़ा सा कम हो रहा है. People are more focused towards this functional skill and behavioral skill. Now when I say functional skill, तो functional skill का एक simple सा example दे दूं मैं अगर आपको, कि जैसे मैंने अभी आपके साथ एक exercise की कि ये screen के ऊपर आपको कौन कौन से colors दिख रहे हैं. This is known as functional skill. Okay, observational skill, listening skill, creativity, your critical thinking, your productivity, आपका solution निकालने का जो pattern है, this all are known as functional skill. Now when I say behavioral skill is your own. ठीक है, आपका कम्युनिकेशन पैटर्न किस हिसाब से है. जैसे अगर मुझे कोई बोल दे कि आपकी कम्युनिकेशन पैटर्न जो है, आप थोड़ा सा मतलब एकदम फेमिनाइन टोन में बोलते हो, आप एकदम धीरे धीरे से एकदम सहला सहला के बात कर रहे हो, आई कैन नॉट चेंज माई दिस स्किल. दिस इज व्हाट माई ओन स्किल, दिस इज व्हाट माई ओन पर्सनालिटी इज. ओके, मुझे इसी के अंदर खेलना है, इसी के ऊपर मुझे थोड़ा सा प्लस माइनस करके अपनी स्किल को डेवलप करना है. आई कैन नॉट अडॉप्ट दैट स्किल विच अदर पर्सन हैज. किसी किसी का ऐसा तरीका होता है कि वो एकदम स्टेज पे आते हैं एंड दे जस्ट स्टार्ट जंपिंग, लोगों को रॉक ऑन करवाते हैं, लोगों को उछालते हैं. आई कैन नॉट डू दिस. ओके, दिस इज माय कम्युनिकेशन पैटर्न. अदर्स मे डू हैव देयर ओन कम्युनिकेशन पैटर्न. वी शुड रिस्पेक्ट दिस. ओके, बट simultaneously if my communication pattern do have anything, मुझे लोग ये बोल सकते हैं कि आप अपनी जो टोन है ना, उसमें हार्शनेस थोड़ा सा कम करो, सॉफ्टनेस ज्यादा लाओ, या फिर सॉफ्टनेस कम करो, थोड़ा सा लाउड होके बोलना शुरू करो. ये सारी चीजें प्लस माइनस है, इसको मैं हमेशा कर सकती हूँ. बट इफ समवन इज सेइंग कि आप थोड़ा उछल के बोलना शुरू करो, आप कूद के बोलना शुरू करो, आप लोगों से मतलब मिलना जुलना शुरू करो, लोगों को गले मिलो, लोगों को हग करो, लोगों को स्टेज पे हाथ खींच के लेके आओ, आई कैन नॉट डू दिस. ओके, सो ये सारी जो बिहेवियरल स्किल है, दैट इज योर इनबिल्ट स्किल. वो सारी चीजें कहाँ से आती है? फ्रॉम योर अपब्रिंगिंग, फ्रॉम योर कल्चरल बैकग्राउंड, फ्रॉम योर ओन बिलीफ सिस्टम, फ्रॉम योर एथिक्स, मोरल्स एंड वैल्यू सिस्टम. ये सारी चीजें वहां से डेवलप होती है. यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद दिस, बट हाँ, प्लस माइनस थोड़ा सा करके उसको पॉलिश ऑफकोर्स कर सकते हो. ठीक है. So technical skill, functional skill and behavioral skill. This three skills, इसका combination जो बनता है उसको हम बोलते हैं the skilled personality. If you are lacking with this technical skill, जैसे मैं अगर मेरी बात करूँ, ट्रेनर्स आज जैसे मास कम्युनिकेशन का एक जो इरा था, जब हम लोगों को वन ऑन वन ट्रेनिंग देते थे, ग्रुप में ट्रेनिंग देते थे, वो आज पॉसिबल नहीं है. नाउ इफ आई से अगर ये पॉसिबल नहीं है, देन आई विल बी वैनिश. मेरा तो बिजनेस नहीं चलेगा. आई कैन नॉट डू लाइक दिस. मैं बिजनेस इसी तरह से करने के लिए यूज टू हूँ और मैं इससे बिल्कुल भी प्लस माइनस नहीं कर सकती. What will happen to me? अगर मेरा टेक्निकल स्किल अडेप्टेशन नहीं है, मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगी. That's for sure, right? I need to develop the digital literacy system.
as per the time demand. I need to develop the system literacy. सिस्टम किस हिसाब से काम कर रहा है, बिकॉज अभी मेरे पास बैक एंड ऑफिस का कोई भी स्टाफ मेरे घर पे नहीं आ रहा है, ना ही मेरी ऑफिस पे आ रहा है. हाउ विल आई डू दिस? मैं हर एक को थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों के लिए फोन करके डिस्टर्ब करूं, मेरा काम कितने टाइम तक पेंडिंग रहेगा? So what I need to do is I need to understand a little bit about my system thing, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, ये सारी चीजें मुझे आज के टाइम पे सीखनी पड़ेगी, बिकॉज दैट्स हाउ आई कैन अडॉप्ट द थिंग. ठीक है. अगर मैं आज के टाइम पे अगर फंक्शनल स्किल की बात करूं, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग की बात करूं, देन दिस वेबिनार, सी इफ आई से कि अगर आप हमारे क्लास में आओगे, मिलेनियम मेकर का बहुत अच्छा सा क्लासरूम बना हुआ होता है, हमने शेयर लगाई होती है, अगर आपको सीखना है आपको वहीं पे आना पड़ेगा. डज इट वर्क? इट विल नॉट एवर वर्क. मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लोगों के मुझे मेरा कोर्स कंप्लीट करना है, मुझे मेरे जो भी स्टूडेंट्स है, मेरी बैच साइज है, उसको एग्जाम के लिए एंटर करवाना है. तो आई नीड टू कंप्लीट माय कोर्स, और उसके लिए व्हाट आई नीड टू डू इज, मुझे पता है कि स्टूडेंट्स के साथ कैसे कनेक्ट होना है, बट अभी फिजिकल कनेक्शन नहीं है मेरा. व्हाट एल्स आई कैन डू? आई कैन ओनली डू अ थिंग, मुझे अपने आप में क्रिएटिविटी डेवलप करने का एक चांस जो है उसको एक्सप्लोर करने के लिए मुझे 100% पॉसिबिलिटीज डेवलप करनी है मेरे लिए. ठीक है. मैं अपने आप के लिए या फिर मेरे स्टूडेंट्स के लिए जो बेस्ट है वो कैसे निकाल सकती हूँ, उसके लिए मुझे वर्कआउट करना ही पड़ेगा. एंड दैट्स हाउ द फंक्शनल स्किल्स कम्स इनटू अ पिक्चर. मैं डिनाई नहीं कर सकती ये सारी चीजों की वजह से. ठीक है. तो ये हो गई एक फंक्शनल चीज. देन बिहेवियरल स्किल्स, अभी जो कम्युनिकेशन मोड है हमारा, वन ऑन वन कम्युनिकेशन नहीं हो सकता. मैं आप किसी को नहीं दे सकती कि आप अटेंटिव हो कि नहीं हो, बट व्हाट आई कैन डू इज, मैं अपने आप से ट्राई कर सकती हूँ कि मैं आपको कमेंट बॉक्स में एंगेज कर सकती हूँ, मैं आपको एक्टिविटी में एंगेज कर सकती हूँ, मैं आपको कुछ राइटिंग देके एंगेज कर सकती हूँ, मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स में एंगेज कर सकती हूँ. So that's how I can develop my behavioral skills as well. ठीक है. So skill development is nothing but it's all about combination of the three major skills. ठीक है. So now when I say मुझे हर एक स्किल की अडेप्टेशन की जरूरत है, बिकॉज हर एक जगह पे मैं देख रही हूँ आजकल की लाइक लॉकडाउन है, पीपल आर गेटिंग इनटू एनी वेबिनार. ठीक है. पेरेंट्स नहीं है फिर भी पेरेंटिंग के वेबिनार में जा रहे हैं. पेरेंट्स नहीं है, आई नेवर मीन टू से लाइक कि मतलब उनकी 40-50 की एज हो गई है और वो वेबिनार में जा रहे हैं. दे शुड ऑलवेज लर्न, बिकॉज उनकी एज ये है कि उनको, या फिर एजुकेटर है. बट अगर 18 या 19 या 20 इयर्स एज के लोग जो है वो वेबिनार में जा रहे हैं, दे जस्ट वांटिंग टू हैव अ टाइम पास. ठीक है. जो स्किल आपके लिए जरूरी नहीं है उसके पीछे आप टाइम बिता रहे हैं जस्ट टू हैव अ ई सर्टिफिकेट. आई डोंट थिंक इट्स रियली रिलेवेंट, है ना. रादर व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपको कौन सी स्किल डेवलप करनी है, कौन सी स्किल आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, ये सारी चीजों का आंसर अगर आपको चाहिए, देन वी डू हैव दिस गोल्डन सर्कल. आई एम श्योर मेरे जो फ्रेंड्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ट्रेनर फ्रेंड्स, दे ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस गोल्डन सर्कल. ठीक है. स्पेशली विद पार्थ सर, बिकॉज ये जो है ये सेल्स एंड मार्केटिंग का गोल्डन सर्कल है. So this golden circle says you always need to ask why, how and what before you move ahead. ठीक है. ये जो गोल्डन सर्कल है दैट इज स्पेशली डिजाइन, सिमोन सिनेक करके एक बंदा है उसने डिजाइन किया हुआ है. बहुत पॉपुलर सर्कल है उनकी. अगर आपको बुक कहीं पढ़ने को मिले, यू शुड ऑलवेज लर्न दिस. बट ये जो सर्कल है उसमें उन्होंने ये चीज दिखाई है कि whenever you are moving ahead, you should always have a question mark कि आप क्यों कर रहे हो, कैसे करोगे, and what will be the outcome from this. ठीक है. तो इसको मैं अभी अगर स्किल के डिफरेंशिएशन में ले लूं तो what I understood is, अगर आपको स्किल डेवलप करने का एक मौका मिल रहा है, ये जो टाइम है उसमें आप स्किल अडेप्टेशन सीख रहे हो, व्हाट ऑल स्किल्स यू रियली रिक्वायर. ठीक है. अगर आप जैसे कोई एक स्कोप डेवलप कर रहे हो, जैसे अभी मैं सोच रही थी नून टाइम पे
फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो थर्मल गन बेचना उन्होंने शुरू कर दिया है, उन्होंने पीपी किट बेचना शुरू कर दिया है। एंड बहुत सारे ऐसे एकदम से ड्रास्टिक चेंज उनके करियर में दिखने को मिल रहे हैं। सो आई वाज लाइक वंडरिंग अबाउट दिस। आई एम नॉट हियर टू गिविंग अ क्वेश्चन मार्क टू समवन, बट एक चीज है, अगर आप अपनी फील्ड को जस्टिफाई 100% नहीं कर रहे हो, सेम टाइम आप दूसरी फील्ड को अडॉप्ट करना शुरू कर रहे हो, नाउ हियर आल्सो your field also requires some or the other way the skill development or skill enhancement। सेम वे आप दूसरी फील्ड में घुस रहे हो, वहां पे भी आपको अपना 100% डालना पड़ेगा, बिकॉज वो फील्ड तो आपकी है ही नहीं और वहां पे आप अपना स्किल डेवलप करना शुरू कर रहे हो। तो वहां पे आपको 90% आपका डालना पड़ेगा, रिमेनिंग 10% आप यहाँ पे डाल रहे हो, विच इज योर कोर बिजनेस, विच इज योर मेन बिजनेस, उसको भी आप बंद नहीं कर रहे हो। व्हाट विल हैपन, वो आपने कहानी सुनी है ना, दोनों नाव पे पैर रख के चलेंगे और फिर कोई एक नाव डूबने को आई तो यहाँ पे भी पैर सिकेगा, यहाँ पे भी पैर सिकेगा, एंड यू विल बी नो। ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको बेसिक जो है आपका फोकस फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर होना चाहिए, वेयर यू वांटिंग टू गो। आप अगर इंजीनियर आपने किया हुआ है, इंजीनियरिंग आपने किया हुआ है, एंड स्लोली इफ यू आर थिंकिंग कि हाँ अभी मुझे पीआर में इंटरेस्ट है बिकॉज आई एम वेरी गुड विद कम्युनिकेशन, इट्स ओके, इट्स रियली ओके टू मूव अहेड, बिकॉज ये जो है इंजीनियरिंग का जो फील्ड है वो आपके पीआर में काम कहीं ना कहीं आएगा ही। बट इफ आई से आई एम इंजीनियरिंग पर्सनालिटी और अभी मुझे डॉक्टर बनना है, सो नाउ दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो। यहाँ पे मुझे कुछ अलग एफर्ट डालनी पड़ेगी, वहां पे कुछ अलग अलग एफर्ट डालना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मुझे एक सर्कल छोड़ के दूसरे सर्कल में जाना है, इट्स कंप्लीटली लाइक कि मुझे एक स्क्वायर को छोड़ना है, दूसरा दूसरा स्क्वायर ड्रॉ करना था और उसके अंदर मुझे बैठना है। दैट मीन्स इट्स रियली टेकिंग अ टाइम, राइट। तो आपको ये पहले देखना है कि कौन सी स्किल आप एक्वायर करना चाहते हो और क्यों एक्वायर करना चाहते हो, why you really think कि आपकी स्किल की जरूरत है टाइम पे। ठीक है, then the second thing is how that means how that skill will add on value in the current position or profession। आप जो भी स्किल एक्वायर कर रहे हो वो अभी आपकी जो करंट सिचुएशन है मार्केट में, अगर आप एस्पिरेंट हो, अगर आप प्रोफेशनल हो, बिजनेस में हो, कुछ भी सिनेरियो है आपका, बट अभी की आपकी जो पोजीशन है उसमें कुछ एड ऑन कर रही है क्या ये स्किल। इफ देयर इज नो होप एंड स्कोप, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको कि मास्क बनाना, थर्मल गन का सेलिंग करना, इट्स टिल व्हाट टाइम इट विल बी रिलेवेंट, जब तक कोरोना नहीं जाएगा। और ये हम सबको पता है कि कोरोना की वैक्सीन आई थिंक विद इन 15 डेज भी आ सकती है, 1 साल के बाद भी आ सकती है, 2 साल के बाद भी आ सकती है। टिल दैट आप ये बिजनेस में सस्टेन कर पाओगे, देन व्हाट। ठीक है, वो वैल्यू एडिशन आपने सिर्फ 2 साल के लिए की, 2 साल के लिए आपके 90% एफर्ट आपने वहां पे डाल दी और 10% एफर्ट आपके रेगुलर बिजनेस में डाली। मतलब यहाँ पे आपका रेगुलर बिजनेस भी ड्राइव हो रहा है और 90% एफर्ट डाल के जो आपने बिजनेस को ग्रो किया, वो आफ्टर 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स वो बिजनेस ठप होने वाला है। बिकॉज एंड ऑफ द डे जब कोरोना नहीं रहेगा तो ये थर्मल गन की, पीपी किट की किसको जरूरत पड़ेगी, है ना। बिकॉज इंडिया में 10 मंथ गर्मी रहती है, पीपी किट पहन के कौन घूमेगा इतनी गर्मी में। इट्स लॉजिकल, राइट। सो जब भी आप कुछ करने के लिए सोच रहे हो, जब भी आप कुछ डाइवर्जन लेने का सोच रहे हो, जस्ट थिंक फॉर अ वाइल, लॉजिकल थिंकिंग अपना अप्लाई करो, एनालिटिक्स अपने अप्लाई करो, अपने रिसर्च अप्लाई करो एंड हैंड क्रिएट दिस थिंग। ओके, दैट्स हाउ यू कैन जनरेट द नॉलेज। इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से मिलती है मार्केट में से इंफॉर्मेशन मिले, उसको नॉलेज में कन्वर्ट करना है, देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ स्किल, एंड दैट्स हाउ दिस प्रोसेस गोज। ओके, नाउ व्हेन आई से व्हाट apart from your stability and sustainability, what else you will gain to adapt by adapting this particular skill। आपको इससे और कुछ फायदा होने वाला है, आप सस्टेनेबल हो जाओगे, स्टेबल हो जाओगे, and that too with the financial and the mental stability। Of course mental stability comes very first in anything। ठीक है,
और उसके बाद आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी. अपार्ट फ्रॉम दैट, कैन यू एड ऑन एनी वैल्यू इन द सोसाइटी, इन द मार्केट फॉर योरसेल्फ एज वेल, जहाँ पे आप अपने जनरेशन टू जनरेशन ये लेगेसी पास ऑन कर सको. इफ नॉट, देन देयर इज नो यूज टू अडॉप्ट दिस काइंड ऑफ स्किल. ठीक है, जैसे अगर मैं एक चीज की बात बोलूं, मेरे पास अकाउंटेंट है और जीएसटी पर्सन है, सीए है. ठीक है, नाउ दैट सीए पर्सनालिटी, he has one on one client base. उसको ये अगर जूम कॉल आए ना या ना आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज उसके क्लाइंट बेस जो है उसको पता है कि आफ्टर ईच मार्च उनके पास हर एक वो क्लाइंट आएंगे जिसको ये इनकम टैक्स फाइल करना है. तो उसको ये पब्लिसिटी की, ये डिजिटल लिटरेसी की, डिजिटल मार्केटिंग सीखने की, ये सारी चीजें शायद उसको जरूरत ना पड़े. एंड जरूरत नहीं पड़ रही है, इसीलिए आई थिंक वो ये सारे वेबिनार्स में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है. रादर ही इज और शी इज लर्निंग न्यू स्किल्स विच इज मोर रिलेवेंट टू हिज और हर प्रोफेशन. कि अभी नेक्स्ट जनरेशन जहाँ पे मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा अच्छे से मेरी सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, ये सारी चीजें मैं कहाँ से सीख पाऊंगा या सीख पाऊंगी. ठीक है, सो हाउ स्मार्टली एंड स्लोली यू नीड टू डेवलप योर स्किल. और स्किल भी ऐसी होनी चाहिए जो आपकी कंफर्ट एरिया जो है, आपका जो मेन कोर एरिया है, उसके आजू बाजू की. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कोर एरिया यहाँ पे है और आपने स्किल यहाँ पे डेवलप किया, बिकॉज ये डिस्टेंस कवर करने में ही आपकी आधी लाइफ निकल जाएगी. वी रियली डोंट वांट दैट टू हैपन, राइट. तो ये जो सारे क्वेश्चंस है ये आप हमेशा पूछो. एंड द लास्ट क्वेश्चन व्हिच आई हैव एडेड फ्रॉम माय एंड, कि ये सारे स्किल्स अडॉप्ट करने के बाद भी आई एम श्योर कि ये सारे स्किल का अडेप्टेशन आपकी मार्केट की जो वैल्यू है उसको 5 इयर्स सस्टेनेबल बनाएगा. फॉरगेट अबाउट 15 इयर्स 20 इयर्स. पहले के टाइम पे, मतलब हमारे टाइम पे हम लोग ऐसा सोचते थे कि अगर हमने करियर बिल्ड करनी है तो 15 इयर्स 20 इयर्स की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए. बट दिस इज नॉट द एरा वेयर वी थिंक अबाउट 15 इयर्स 20 इयर्स का सिक्योरिटी. If we think about 5 years का security, that is more than enough. 5 years के बाद no one, including me, हम सबको ये growth cycle पसंद आ गया है कि जब हम सब ये expect करते हैं कि 5 years के बाद अगर कहीं पे growth मिल रहा है, we should always think about moving on. ठीक है, so 5 years down the line अगर आपकी market में sustainability develop हो रही है, आपकी skill enhancement की वजह से आपकी market value धीरे धीरे बढ़ रही है, then you should definitely move on with the skill. Otherwise, it's completely wasting of time. Or else, rather, the skill will also become information. Hanji sir. It has been more than an hour. Can you wind up? We have a Q&A also. It's the last slide, sir. Yeah. Carry on, please. So this is last slide, sir. Okay. Carry on. So Q&A. Yes. So now when we think about this all things, we should always consider ourselves where we are lined up and how to move ahead with this. Okay. So ये जो है, ये अगर transformation हम चाह रहे हैं, then we should all know what all are the pros and what all are the benefits out of the skills and how to transfer ourselves from knowledge era to skill era. Okay, and I think this is it from my end, and now I will open myself up for Q&A. If you guys have any questions, you may ask the questions and feel free to converse. Sir, do we have any questions till now? Hello? Yes, we have one question. What are the key skills that will have a marketplace post COVID-19? Key skills, when I say, if you are considering yourself as a skilled personality, or else if you really wanting to move ahead with the skills, आपको collaboration, communication and transformation, ये 3 चीज आपके पास अगर है, then you will be through with the things. Now when I say communication, means you will be through with the communication pattern. किस हिसाब से लोगों को कन्विंस करना है, ये आपके अंदर होना चाहिए.
सेम वे आपके पास कोलैबोरेशन पैटर्न्स अच्छे से होनी चाहिए, कोलैबोरेशन दैट टू विद विन विन सिचुएशन। अगर आप विन विन सिचुएशन किसी को प्रोवाइड कर सकते हो, इट विल बी थ्रू बिजनेस। ओके, सो ये पैटर्न जो है उसके साथ हम करेंगे तो डेफिनेटली स्किल में आप परफॉर्म कर पाओगे। Okay, there is one question from my side, madam. You described skill in 3 categories, right? Functionality. Keeping this current market scenario, which are the top 2 skills that are there in each functionality? If you can wind up with these 6 skills, there are 3 categories, so 2 skills in each. So this post-COVID market scenario, if these 6 skills I attain, I will be safe, or normally more safe than other professionals. Okay, so when I say technical skill, as I shared with you, digital literacy is must nowadays, because without digital literacy you cannot perform or you cannot think about performing anywhere. Because अभी जैसे PR से लेके हॉस्पिटैलिटी से लेके अगर आप ऑपरेशनल स्किल देखोगे, अगर आप टेक्निकल स्किल देखोगे, हर एक चीज का फंक्शन बेसिक यही हो गया है, विच इज डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, so if you have basic digital literacy, you will be far enough than the technical skill. Okay, then now when I say technical skill, what I wanting to say is like जो भी आपका अभी करंट सिनेरियो है, जैसे एक एग्जांपल के साथ में अगर आपको समझाऊं, बैंकिंग में अगर आप जाना चाहते हो to think about this basic traditional culture like clerical part ले लो, ऑपरेशन पार्ट ले लो, think far ahead than this कि इसके आगे हम क्या कर सकते हो। बिकॉज बैंकिंग में भी अब बहुत सारे ऐसे डेजिग्नेशन आ रहे हैं जो पोस्ट कोविड में बहुत रिलेवेंट हो सकते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट काउंसलर, जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वेल्थ, इन्वेस्टमेंट की हेल्थ के बारे में ईच एंड एवरी मूव आपको डिसाइड करके देंगे कि आप इसमें डालो, इसमें डालो, आपका पोर्टफोलियो डिजाइन करके देंगे। तो दैट इज नोन एज आईसी, इन्वेस्टमेंट काउंसलर, विच इज लाइक बेस्ट थिंग। तो आप अपने आप को ऐसे ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एरिया में रखो जहां पे आपकी टेक्निकल स्किल है जिसको कोई टच करने का सोच ही नहीं सकता। सेम में अगर फंक्शनल स्किल की बात करें, अगर आपके पास इनोवेशन है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी है, यू विल बी फार अहेड देन अदर पीपल। ठीक है, रेगुलरली अगर आप किसी न किसी जगह पे आप इनोवेशन डाल रहे हो, देयर इज नथिंग मोर देन दिस। ठीक है, देन बिहेवियरल स्किल्स, एज आई सेड कि कम्युनिकेशन अगर आपका ठीक चल रहा है, अगर आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने आप को दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ, इट विल बी ग्रेट सिनेरियो। You can always synergize yourself. Okay, fair enough. So, madam, if anyone has any other questions, they can put it in the comments section right now. We have more 2-3 minutes for that. If anyone is here live and wants to ask any specific questions regarding the explanatory detailed lecture from madam regarding skill and knowledge and how to transfer your knowledge into skills, okay, which was really an eye opening for even someone like me. Are there any questions here? Anyone? Okay, so we are good, and thank you, Deval madam, for your great time that you took out for us for Millennium Makers and gave this lecture. We are really humbled by your knowledge. Thank you very much. Signing off from Millennium Maker, Prahan Trivedi right now. Have a good evening. Be safe. Now I can't stay home, right? Thank you.